Assalamu alaikum everyone. Welcome to today's webinar on JS Microfinance Sector Fund, Balancing Risk and Seizing Opportunities. I'm Yasin, Portfolio Manager at JS Investments. Now, this is a glimpse of four sections that we will be focusing on today. Firstly, we will give you a sense of microfinance, what it is, and then we will discuss JS Microfinance Sector Fund, जो कि हमारे आज का वेबिनार का मौजू है। फिर इसके बाद हम पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस इकोसिस्टम पे बात करेंगे और लास्ट में we will shed light on global perspective. To begin with, let's define what microfinance is. So here we have chosen Cambridge Dictionary definition since it explains the concept in a very simplest way. The dictionary defines the microfinance concept as the activity or business of providing financial services such as small loans to poor people or new businesses that cannot use traditional banking services, usually in developing countries. The core services of microfinance includes microcredit savings and checking accounts, micro insurance and payment system. Target audience is the socially marginalized population. Now that we understand the definition of microfinance, I want to emphasize that it is established for the greater good of society. To illustrate this point, let's take a look at this slide. The United Nations has set 17 Sustainable Development Goals, and microfinance contributes to achieving around 10 of these goals as shown here. Number one, no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, and responsible consumption and production. इन्हीं गोल्स को मद्देनजर रखते हुए वी गॉट दिस इंस्पिरेशन टू लॉन्च अ डेडिकेटेड फंड इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, जिसका ना सिर्फ सस्टेनेबिलिटी पर फोकस हो बल्कि वो फंड इन्वेस्टर्स को सुपीरियर रिटर्न विद लो रिस्क भी फराहम कर सकें. दिस लेड टू द लॉन्च ऑफ जेएस माइक्रो फाइनेंस सेक्टर फंड. इस सेक्शन में हम जेएस माइक्रो फाइनेंस सेक्टर फंड के की फीचर्स, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और ट्रैक रिकॉर्ड पे बात करेंगे. ऑलराइट, लेट्स गो ओवर द वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ जेएस माइक्रो फाइनेंस सेक्टर फंड. फर्स्ट, इट ऑफर attractive returns higher than the money market funds. Plus, there is a social element also. You are supporting financial inclusion and economic growth in underserved areas. They also provide stable income, which is great for conservative investors. Adding JS Microfinance Sector Fund to your portfolio helps with diversification as it is less correlated with the traditional markets. This slide presents the fund's key information. As you can see, the fund was launched on 11th of May 2022. Its benchmark is 6-month CABOR, and along with the key other details, which you can see here, it is also published regularly in our fund manager report. Let's now discuss the investment policy of the fund. Being a sector fund, it is required to maintain a minimum 70% exposure to the microfinance sector. The minimum entity rating requirement is A-. Exposure to corporate debt securities within the microfinance sector cannot exceed 10%. Likewise, commercial paper issued by the microfinance institutions can be added up to 10% maximum threshold. In addition to this, the fund allows taking exposure to the traditional investment avenues of income funds like government securities and so on, as long as the fund maintains the bare minimum 70% weight in the microfinance sector on a quarterly average basis. This sums up the investment policy of the fund. Now let's move on to the next slide. Moving on, here we have shown the fund's portfolio composition. On the left-hand side, you can see the asset allocation, and on the right side, the fund asset quality. As you can see, the cash comprises over 60% of the fund exposure, where the rest of the fund assets include placement with high-quality microfinance bank with only a negligible exposure to corporate debt instruments. The pie chart on the right side clearly shows the fund has been maintaining a higher level than the minimum rating threshold allowed under the investment policy, जहां 3/4 of the fund asset have been placed with microfinance bank having A+ rating. Note that although this is the fund present composition, it has pretty much remained so for most of the time since the fund launch. अब हम fund की performance पर आ जाते हैं, जो कि next 4 slides address करेंगी. सबसे पहले this slide shows the annualized returns of the JS Microfinance Sector Fund, its benchmark and the average of conventional income funds. यहाँ पर ये बात गौर करने की है कि JS Micro Sector Fund, although एक sector fund है, इसको income fund scheme में ही classify किया जाता है. लिहाजा हमने कंपैरिजन के लिए कन्वेंशनल इनकम फंड्स की एवरेज प्लॉट की हुई है so that you can get a clear picture of the fund's performance. You can see yourself the fund has consistently outperformed not just its benchmark but the other income funds as well over different time periods.
However, if you see 180 days and FITD परफॉर्मेंस, स्लाइटली थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है वो इनकम फंड की ज्यादा है, या आप कह लें कि एट पार पे है, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि रीसेंट जो शार्प ड्रॉप आया था बॉन्ड यील्ड्स में, ड्यू टू विच वी हैव सीन अ प्राइस गेन इन द इनकम फंड्स। मूविंग ऑन, इस स्लाइड में हम ये दिखा रहे हैं कि अगर आपने मई 2022 में जेएस माइक्रो फाइनेंस सेक्टर फंड में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास 16,000 रुपए होते। कंपेरेटिवली बेंचमार्क के रिटर्न्स के साथ वही 10,000 15,400 रुपए होते, और बाकी इनकम फंड्स में इन्वेस्टमेंट भी तकरीबन इसी अमाउंट के आसपास ही होती। लिहाजा अगर आप टोटलिटी में देखें तो जेएस माइक्रो फाइनेंस सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर वुड हैव अर्न अप्रोक्सीमेटली 600 रुपीज मोर बाय रादर बीइंग इन्वेस्टेड इन बेंचमार्क और इनकम फंड। Moving on, now this slide is very important and I would like to take a little extra time on this as it presents the other side of the performance, which is risk. जब रिस्क की बात होती है तो रिस्क मेजर होता है वॉलेटिलिटी से, और वॉलेटिलिटी को मेजर करने का सबसे बेहतरीन टूल है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि फंड का जो एवरेज रिटर्न है उससे रिटर्न्स कितना डेविएट हो सकते हैं। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1%, तो रिटर्न्स में फर्क प्लस माइनस हो सकता है 1% का। अब अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें तो जो आम परसेप्शन जनरली लोगों के जहन में है, दिस स्लाइड इज कंप्लीटली रिजेक्टिंग दैट परसेप्शन। ये कॉमन परसेप्शन जो हमने खुद भी फेस किया फंड के लॉन्च के टाइम पर, कि क्योंकि ये फंड माइक्रो फाइनेंस से वाबस्ता है इसलिए ये फंड बहुत ज्यादा रिस्की है। लेकिन इन रियलिटी जेएस माइक्रो फाइनेंस सेक्टर फंड की वॉलेटिलिटी बाकी इनकम फंड से बहुत कम वाक़ई हुई है। इसका मतलब ये है कि असल में ये फंड कन्वेंशनल इनकम फंड से सिग्निफिकेंटली कम रिस्की साबित हुआ है। इसकी एक अहम वजह फंड मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी है। हमने फंड की ड्यूरेशन को कम रखा है और ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कैश प्लेसमेंट्स में होती है, जिससे प्राइस रिस्क भी ना होने के बराबर है। ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को पीस ऑफ माइंड देता है और क्रेडिट रिस्क को हम हाई क्वालिटी एसेट्स मेंटेन करके मिटिगेट कर रहे हैं। ये सब फैक्टर्स मिलकर इंश्योर करते हैं कि जेएस माइक्रो फाइनेंस सेक्टर फंड स्टेबल और सिक्योर ऑप्शन रहे इन्वेस्टर्स के लिए। लास्टली, दिस स्लाइड शोज व्हाट वी कॉल द रिस्क एडजस्ट रिटर्न्स, जो दरअसल दोनों एंगल्स का खुलासा है, रिटर्न्स एंड द रिस्क। इसको मेजर करने का ग्लोबली रिकग्नाइज तरीका है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो बेसिकली फंड के रिटर्न को उसके रिस्क से कंपेयर करता है बाय डिवाइडिंग द फंड एक्सेस रिटर्न बाय इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्सेस रिटर्न से मुराद फंड्स रिटर्न ओवर एंड अबव रिस्क फ्री रेट है। रिस्क फ्री रेट के लिए यूजुअली टी बिल रेट यूज किया जाता है। लिहाजा शार्प रेशियो सिंपली टेल अस के फॉर ईच यूनिट ऑफ रिस्क दैट द फंड इज टेकिंग हाउ मच इंक्रीमेंटल रिटर्न द फंड इज एबल टू जनरेट। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड्स जेएस माइक्रो फाइनेंस सेक्टर फंड का शार्प रेशियो हैज बीन सब्सटेंशियली हायर कंपेयर टू द इनकम फंड्स इन जनरल, मेकिंग जेएस माइक्रो फाइनेंस सेक्टर फंड an optimal balance between risk and return. Having discussed the JS Microfinance Sector Fund in detail, let's now discuss the Pakistan's microfinance ecosystem. इस सेक्शन में हम आपसे जो बॉल पार्क फैक्ट्स शेयर करेंगे जिससे आपको पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की ग्रोथ और ओवरऑल डायनामिक्स के बारे में अवेयरनेस मिल सकेगी। सबसे पहले हम पाकिस्तान में जो माइक्रो फाइनेंस बैंक इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं उनकी एवोल्यूशन पर नजर डाल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं काफी सारे बैंक्स हैं। ये बैंक्स जिन सालों में एस्टेब्लिश हुए हैं हमने आपके सामने प्लॉट कर दिए हैं। सबसे पहला बैंक खुशहाली बैंक जो 2000 में एस्टेब्लिश हुआ, और अगर आप मोस्ट रीसेंट देखें तो 2012 में एडवांस बैंक था विच हैज नाउ बीन टेकन ओवर बाय इजिप्ट हेलन फिनटेक सेटअप एंड इट्स नाउ बीइंग कॉल्ड हेलन माइक्रो फाइनेंस बैंक। इसमें की चीज ये है कि सबके पीछे लीडिंग स्पॉन्सर्स हैं, जैसे यूबीएल बैंक इज फॉर खुशहाली, पीटीसीएल इज फॉर यू बैंक एंड सो ऑन। इन बैंक्स के अलावा बहुत से और भी इदारे हैं जो माइक्रो फाइनेंस का काम कर रहे हैं जो नॉन बैंकिंग सेक्टर में आते हैं, जैसे कि कश फाउंडेशन जो मिड 90s से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, एंड अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस इज अनदर इंस्टीट्यूशन जो कि अर्ली 2000 से माइक्रो फाइनेंस में अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। अच्छा, अब यहाँ हमने जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं उनके ब्रांच नेटवर्क पर रोशनी डालते हैं। इन बैंक्स का रिटेल नेटवर्क बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इनमें से जो लीडिंग बैंक्स हैं, यू बैंक है जिसका नेटवर्क 392 ब्रांचेस का है। इसके अलावा एचबीएल एंड खुशहाली का नेटवर्क भी ओवर 200 ब्रांचेस का है। अब जो अगली दो स्लाइड हैं उसमें हम माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के लोन पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। जो लोन्स का ब्रेकडाउन है वो 2/3 रूरल को सर्व कर रहा है और रिमेनिंग अर्बन को।
On the right side, the major sectors microfinance is serving are livestock and agriculture. This is also in line with the international trend. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पर एज द सब हेडिंग एक्सप्लेन, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो कि मिलियंस में है, अगर आप 10 साल में देखें तो इनमें 7 गुना इजाफा हो चुका है। और ऑन द राइट हैंड साइड जो नेट एडवांसेस हैं वो पिछले 10 सालों में ओवर 12 टाइम्स बढ़ चुके हैं। इसी तरह से अगर आप डिपॉजिट्स देख लें तो यहाँ पर देयर हैज बीन अ फिनोमिनल ग्रोथ। जून 2024 में माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के डिपॉजिट्स 640 अरब हो चुके हैं। दैट इज अ 17 टाइम इंक्रीज इन द लास्ट 10 years. On the right side, we have compared the growth of advances and deposit. This is a constant annual growth of 10 years. And in Pakistan, the deposit growth of microfinance bank has outperformed the growth of advances. यहाँ वी हैव शोन यू द डिपॉजिट यूटिलाइजेशन ट्रेंड, और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं हमने दो फंडामेंटल रेशोज जो बैंकिंग सेक्टर में यूज होते हैं उनको प्लॉट किया हुआ है। एडवांस टू डिपॉजिट रेशो जो लेफ्ट साइड पर प्लॉट हुआ हुआ है, एंड इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो जो राइट साइड पर प्लॉट हुआ हुआ है। और इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो देखें तो जो ट्रेंड है वो 30% के अराउंड फॉल करता है, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है बैंक का एक्सपोजर टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और लेफ्ट पर एडीआर रेशो शोज अ ड्रॉप इन द ट्रेंड। द मेजर रीजन इज द ग्रोथ रेट ऑफ deposit, which has significantly outpaced the growth in advances. Moving on to the last slide of this section, we have shown the credit health and the risk coverage of the microfinance banks. Net infection ratio जो reflect करता है the portion of banks non-performing loans as a percentage of the total loans, उनका क्या proportion है। और इसमें हम net basis पर बात कर रहे हैं जिसमें हम provisions को net out कर देते हैं। इसमें you can see that in recent years the trend has increased and the ratio ranges between 1 to 1.5%। और आई थिंक मुझे इस पर बहुत ज्यादा इलेबरेट करने की जरूरत नहीं है। रिसेंट ईयर्स में काफी मुश्किलात आई जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक, फ्लड्स एंड अदर मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस, और ये ग्राफ इसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड लास्टली ऑन दी राइट हैंड साइड यू कैन सी द कवरेज रेशो जो कि बेसिकली शो करता है बैंक्स के प्रोविजन अगेंस्ट इट्स स्टॉक ऑफ नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। अब इसमें यू कैन सी दैट इट ड्रॉप व्हेन द इन्फेक्शन रेशो हैज इंक्रीज, but in the most recent past it has improved and the ratio is now close to 80%. So this ends our section, but I would like to add in the end that these last two slides we have used 2-year averages for our data points to reflect on the general pattern ताकि आपको ट्रेंड ज्यादा विजिबल नजर आ सके। अब हम क्विकली ग्लोबल पर्सपेक्टिव को टच अपॉन कर लेते हैं। जब हम ग्लोबल सोचते हैं तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो ग्रामीण बैंक का, जिसको प्रोफेसर यूनुस ने बहुत कामयाबी से ग्रो किया। इस बैंक ने माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट बांग्लादेश में घर घर तक फैलाया। आज इसकी 2500 से ज्यादा ब्रांचेस हैं पूरे बांग्लादेश में। अब यहाँ हमने कुछ अहम ग्लोबल माइक्रो फाइनेंस फंड्स के नाम आपके सामने रखे हैं, जिनमें ब्लू ऑर्चिड, ट्रायोडोस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकॉफिन एंड डेवलपिंग वर्ल्ड मार्केट्स माइक्रो फाइनेंस फंड्स हैं। ये फंड्स दुनिया के सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस फंड्स में शुमार किए जाते हैं जो कि प्रीडोमिनेंटली डेवलपिंग कंट्रीज में माइक्रो फाइनेंस की नीड्स को सर्व कर रहे हैं। और आखिर में आई वुड वांट टू शेयर विथ यू सम की ग्लोबल स्टैटिस्टिक जो कि हमने दुनिया की लीडिंग सोशल इंपैक्ट रिसर्च फर्म से इकट्ठे किए हैं। सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस जो मार्केट है उसका साइज $250 बिलियन है, और ये आने वाले 10 सालों में तकरीबन $600 बिलियन की मार्केट हो जाएगी। 70% जो माइक्रो फाइनेंस बोरोवर हैं आर बेस्ड इन साउथ and Southeast Asia. 2/3 of micro loans are issued to women globally. Agriculture sector receives the largest portion of microfinance loans. तकरीबन 1.5 अरब लोगों के पास एक्सेस नहीं है बैंकिंग सर्विसेज का। कितना बड़ा अलमिया है ये। The average micro loan is under $2,000 only. अब ये एवरेज है तो बहुत सारे लोन्स $500 के साइज के भी हैं। माइक्रो फाइनेंस पेमेंट्स आर जनरली अफोर्डेबल फॉर क्लाइंट, ऐसा हमें ग्लोबल सर्वेस बताते हैं। एंड फाइनली द 2 पॉइंट्स जिन पर हम कंक्लूड करना चाहेंगे इस वेबिनार को आर दैट द एक्सपेंडेड एक्सेस ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन has improved the financial status of most borrowers. इसके साथ साथ माइक्रो फाइनेंस has helped support economic growth through the creation of jobs. लिहाजा जेएस माइक्रो फाइनेंस सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करके आप ना सिर्फ हायर रिटर्न विद लो रिस्क अचीव कर सकते हैं, जैसा कि हमने फंड परफॉर्मेंस की स्लाइड्स पर आपको बताया, बल्कि एक ग्रेटर गुड के कॉज को सर्व करने में मददगार बन सकते हैं। If you are interested in investing or need more personalized guidance, feel free to call us at 0800 00887, or you can email us at ir@jsil.com. Now let's proceed to the Q&A session.
Thank you all for sharing your questions. Now I'll try to address them one by one. The first question I see is that if we have been on cash, then how have we achieved such a good performance? इसका आंसर ये है कि जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं उनके रेट्स हाई होते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एंटिटी रेटिंग कहाँ से मिलती है। द आंसर इज सो रेटिंग एजेंसी की वेबसाइट जैसे कि पैकरा एंड JCR VIS की वेबसाइट पर ये डिटेल आपको आसानी से मिल जाएगी। The next question we can take is how we decide which banks to place deposit in. और शायद आप ये भी पूछना चाह रहे हैं कि इन डिपॉजिट्स का दौरानिया क्या होता है। इसका आंसर ये है कि असल में जो सूरत हाल है कुछ ऐसी है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च टीम है अलॉन्ग विद द रिस्क मैनेजमेंट टीम इसमें रिसर्च करती है कि किस बैंक के फंडामेंटल क्या है। टॉप डाउन एनालिसिस की मदद से ये देखा जाता है कि मैक्रो इकोनॉमी की कंडीशंस क्या है और इसकी बेसिस पर हम असेसमेंट करते हैं कि इन बैंक्स की रेटिंग और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को मद्देनजर रखकर ये देखते हैं कि कौन से बैंक्स अच्छे रेट्स दे रहे हैं और फिर हम उनसे नेगोशिएट करते हैं फॉर बेटर रेट्स। जिस तरह फिक्स इनकम मार्केट में इंस्टीट्यूशंस आपस में कॉम्पीट करते हैं टू गेट बेटर रेट। अच्छा, फिर आपका सवाल ये भी था कि इन डिपॉजिट्स का दौरानिया क्या होता है। तो वो जैसे हमने आपको दिखाया अपनी एसेट एलोकेशन में कि ये सारी इन्वेस्टमेंट्स प्रीडोमिनेटली डेली प्रोडक्ट में होती हैं एंड कुछ TDRs में प्लेस होती हैं जिनका 10 और यूजुअली 3 to 6 मंथ होता है। एंड डेली प्रोडक्ट इज लाइक सेविंग्स अकाउंट जिनका ड्यूरेशन टेक्निकली 1 डे कंसिडर किया जाता है। Thank you everyone for joining us today. I hope you found this session insightful and valuable.